lawmakers have constantly sidelined and ignored. As someone who has been working on men's issues for a long time, I know that lakhs and lakhs in this country who are victims of injustice have their hopes ignited because of him. And I think we have seen the glimpse of that right here in front of ourselves. Mr. Mohanty, thank you so much. Thank you so much. Honorable Member of Parliament and a very famous personality, Sonal Mansingh Madam, for coming here, and ma'am, your presence here itself and the words you spoke here, and we were speaking while watching the movie also, it really makes a lot of sense, and a huge population of India actually demands the same thing, whatever you said, ma'am. And I commit you, I promise you, whatever you expect from me as a Member of Parliament, as a citizen of India, I would certainly try my best to do that, madam. And now, I would, before speaking anything, I would like to thank and congratulate the movie maker, India's Sons. Absolutely a lovely movie, and the makers are here, Neeraj and equal right, which is beyond caste, creed, gender, and anything, color, race, whatever you can say. We all have equal right to justice. We all have equal right to everything in this nation. So the rights that a woman has, the equally same rights a man should have. Equal rights to justice, equal rights to equal freedom to speak, equal right to speak out their heart out, whatever problems we face in our society, in our daily life. So, as a lawmaker, as two of our people who had come, who are real victims, one a brother who has lost a brother, and another young man who was unnecessarily facing a lot of tortures, who lost his father himself. So both of them were on the stage, and few others, those who are not here, but were on the screen few minutes back. I salute all of you, the way you have shown the courage, those who say right. It's a conception, and I think, and whoever has seen this movie, I strongly can bet that you must be believing that yes, not all men are wrong. 2014 से 19 तक मुझे राज्यसभा में रहने का मौका जब मिला था, I happen to be the youngest member of parliament in Rajya Sabha ever in the Indian history. So, Madam, and I was blessed to be in the upper house, which is a house of wisdom. Why people like you are there? So, मुझे आप लोगों से सीखने का मौका मिला था, मैडम, जिसके वजह से मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि तब भी मुझे एक कमेटी के माध्यम से मुझे तिहाड़ जेल जाने का मौका मिला था। तब मैडम मैंने देखा था जितने वहाँ पे कोर्ट में हैं, मैडम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ट्रायल्स चल रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष हैं या सिर्फ महिलाएं हैं, ये दोनों हैं जो उस लिमिट को क्रॉस करके भी जेल में ट्रायल्स चल रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि वो कब तक वहाँ रहेंगे। हो सकता है उनकी जिंदगी बीत जाए वहाँ पर, मैडम। और कई, जैसे अभी रिसेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी दीपिका, नीरज तिवारी, व्हाट वाज विष्णु तिवारी, यस आई एम सॉरी, विष्णु तिवारी, जो कि 23 साल की उम्र में उनको जेल दंड मिला। 20 साल एक SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट फॉल्स रेप केस में उनको 20 साल की सजा सुनाई गई। जब वो 43 साल के थे तब वो जेल से बाहर आए। पर ऐसे विक्टिम्स, ऐसे फॉल्स केसेस के विक्टिम्स को हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो लाइन बोलूंगा जिससे आपको एक चीज क्लैरिटी में दे दूं, क्योंकि उसके बाद ऐसा ना हो कि मुझे कोई गलत समझे मेरे बातों का। पर मैं इतना इमोशनल हो गया कि वो दो चीजें मैं बोल नहीं पाया, तो अभी बोलना चाहूंगा। Even if I am going through a marital discord, I have always prayed for my legally wedded wife कि वो जहां पर भी है, जहां भी रहे आगे चल के, वो खुश रहे अपनी जिंदगी में।
जो कुछ चाहती है वो उनको सब कुछ मिले, वो अपनी जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल करे जो वो सपना देखती आ रही है आज तक, कभी उनको कोई तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और उसी के साथ में ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि पिछले 1.5-2 साल से जिस मीडिया ट्रायल का सामना मैं और मेरा परिवार कर रहे हैं, वो उनको कभी भुगतना ना पड़े। जो मैं, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरा पूरा परिवार हम भुगत रहे हैं, वो मेरी लीगली वेडेड वाइफ को या उनके परिवार को कभी भुगतना ना पड़े, क्योंकि अगर वो कभी भुगतेगी तो मुझे नहीं लगता वो सह पाएंगी, मुझे नहीं लगता वो सह पाएंगी। मेरे पिता 71 साल की उम्र के हैं, अंडरगोइंग डायलिसिस, एक्यूट किडनी डिजीज, पर हम एक इतने बड़े जॉइंट फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं, जिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हम पैदा हुए हैं, मेरे पिता भी पैदा हुए थे वहीं पे, 20, 22, 23 लोगों का एक बड़ा जॉइंट फैमिली, पूरा फैमिली इकट्ठे रहता था। आज हम लोग ऐसे फॉल्स एलिगेशंस के भय से और उससे दूर रहने के लिए कि क्यों इतना मानसिक तनाव में रहना है, तो वी ऑल आर स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस एंड इन आवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विद ड्यू रेस्पेक्ट, शी हैज एवरी राइट टू स्टे देयर। जब तक लॉ कोर्ट जजमेंट नहीं देता उनको, तब तक उनका हक है, तो वो वहीं पर ही रह रहे हैं और वो भी पुलिस के साथ रह रही हैं कि ताकि उन पर कोई हिंसा ना करे, जबकि हम कोई भी घर पे नहीं है हिंसा करने वाला। जिनके नाम पर बोला गया है वो कोई भी नहीं है, पर वो घर पे हैं। भगवान उनको, उन पर कभी भी कोई हिंसा ना होने दे, किसी से भी ना होने दे, क्योंकि हिंसा महिला के प्रति हो या हिंसा पुरुष के प्रति हो या हिंसा ट्रांसजेंडर्स के प्रति हो, हिंसा किसी भी रूप में दंडनीय अपराध है। हिंसा किसी भी रूप में वो दंडनीय अपराध होता है। देश की बात जब करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारा देश का भविष्य कैसा होगा, अब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से जब उन्होंने नेतृत्व लिया है पूरे भारत का, और मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूं, मेरे नेता नवीन पटनायक जी, जिनको पूरी दुनिया राजनीतिक लिमिटेशंस, राजनीतिक बाउंड्रीज से भी ऊपर देखती है, ऊंचा देखती है, क्योंकि वो कभी पॉलिटिकल दायरे में रहकर लोगों की सेवा करने में नहीं यकीन रखते हैं। एंड आई बिलीव द सेम गोज फॉर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। तो ऐसे नेता जब पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को लीड कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर, अच्छा काम करते हुए, अच्छा काम करके, तो हम उस वक्त में उम्मीद रखें कि भविष्य में जहां से नींव, एक मकान जब बनती है ना, तो उसकी नींव मजबूत होनी जरूरी होती है। एक बड़ा मकान हो या छोटा मकान हो, उसकी नींव उसकी जड़ें बहुत ही सख्त और मजबूत होनी जरूरी होती है। तो उससे मैं रिलेट करना चाहूंगा हमारे भारत के, हमारे देश के छोटे बच्चे, हमारे बच्चों के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा, जो मैं संसद में कई बार बोल चुका हूं। और यहाँ पर डॉक्टर राकेश कपूर जी भी मौजूद हैं, विशाखा मैडम भी मौजूद हैं, वो भी कई सालों से इसके ऊपर काम करती आ रही हैं और कई संस्थाएं इस पर काम कर भी रही हैं। और इसके बारे में कहने से पहले मैं ये भी बता दूं कि मेरे बच्चे नहीं हैं, हाँ, तो आपको लगे कि यार लगता है ये भी उसी का शिकार है तो इसीलिए बोल रहा है, तो आई एम नॉट येट अनफॉर्चुनेटली नॉट ब्लेस्ड विद एनी चाइल्ड, और इसकी वजह में आप यहाँ पे बोलना सही नहीं होगा। मैटर इज सब जुडिस, तो कोर्ट को डिसाइड करने दें हम। और हम जब डिवोर्स के बाद में सबसे पहला चीज आता है चाइल्ड कस्टडी के ऊपर, चाइल्ड कस्टडी को लेकर आता है कि बच्चा भैया किसके पास रहेगा। माँ बोलती है मैंने पैदा किया है, मेरे पास रहेगा। बाप बोलता है भाई मेरे बिना थोड़ी पैदा कर दिया, तो मेरे पास रहेगा। पर इससे क्या होता है, ये जो लड़ाई झगड़े में हम ये भूल जाते हैं कि छोटे से बच्चे पर क्या बीतती है, छोटी सी बच्ची पर क्या बीतती है। उस वक्त वो नहीं जानता था कि मेरे माँ बाप में आगे चल के लड़ाई होने वाली है। बच्चे तो हमेशा चाहते हैं, और उनका तो ये बायोलॉजिकल एंड लीगल राइट है, दे हैव द राइट ऑन बोथ देयर पेरेंट्स, बोथ फादर एंड मदर, इक्वल राइट्स। उनसे ये हक छीनने का अधिकार, उनसे ये हक छीनने का अधिकार ना तो पिता का है ना ही माता का है। पर यह शर्म की बात है कि हमारे देश में जब तक किसी को 18 साल नहीं हो जाता,
उसे वोट देने का अधिकार नहीं देते हैं, उसे अपना नेता चुनने का अधिकार जरूर नहीं देते हैं, लेकिन बच्चा भले ही 3 साल 4 साल का क्यों ना हो, 5 साल का क्यों ना हो, 6-7 साल का क्यों ना हो, उसको कोर्ट जरूर बार बार बुलाते हैं ये पूछने के लिए कि तू बेटा किसके साथ रहना चाहता है, या किसके साथ रहने के लिए तू पसंद करता है, बाप के साथ या मां के साथ। उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बातें हम क्यों डालते हैं, और उनको कोर्ट बार बार घसीट कर हम उनके ऊपर जिंदगी भर के लिए ठप्पा क्यों लगाते हैं कि यू हैव टू से ऑन योर फीलिंग्स कि तुम किसके साथ रहना चाहते हैं, एंड यू बिकेम एन एलियनेटेड चाइल्ड। ये पेरेंटल एलियनेशन जो चीज है, ये जो ठप्पा है, दिस इज अ साइलेंट एपिडेमिक, दिस इज अ साइलेंट एपिडेमिक विच इज रूइनिंग आवर नेशन इन कमिंग डेज, विच इज गोइंग टू रूइन कंप्लीटली। क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे देश में आज की तारीख में हर साल 80,000 से लेकर 1,32,000 तक के होते हैं, और आज की तारीख में ऐसी इनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ या उससे ज्यादा होगी, कम नहीं है हिंदुस्तान में। हम इनके भरोसे पर बच्चों को छोड़ रहे हैं, हम इनके भरोसे पर बच्चों को छोड़ रहे हैं। सो इन टुडेज टाइम आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल इंडिया सन्स, to all the sons of India and all the daughters of India together, to stand unitedly, strongly against all kind of wrong activities, all kind of gender biased laws and misuse of laws. कोई भी लॉ को मिसयूज करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये आपकी जिम्मेदारी जितनी है, लॉ मेकर्स की भी जिम्मेदारी उतनी है। और ऐसे प्रोड्यूसर्स सोनी कपूर जी और ऐसे मेकर्स नीरज और दीपिका नारायण भारद्वाज जी and entire team, I salute you all from the bottom of my heart, from the core of my heart, and this will continue forever. We will try our best to get this screen in the parliament where we can have all the member of parliaments to watch it. This can be an eye-opener, this can be an eye-opener, and this can be a game changer, a trend setter. Thank you all, love you all. Jai Hind, Vande Mataram.